تلنگانہ ایکسپریس میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ کریم نگر ضلع کے حضور آباد میں بس اسٹینڈ کے قریب ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ گرینیڈ پتھروں سے لدی ایک تیز رفتار لاری بے قابو ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر سے ورنگل کی سمت جانے والی لاری اس وقت بے قابو ہو گئی جب بس اسٹینڈ سے سرسلہ ڈپو کی ایک RTC بس تقریباً 25 مسافروں کے ساتھ نکل رہی تھی۔ لاری RTC بس کو بچانے کی کوشش میں پہلے بس کے پچھلے حصے سے ٹکرائی اور پھر ایک بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرائی، جس کے بعد وہ ایک دکان میں گھس گئی۔ اس حادثے میں RTC بس کا پچھلا حصہ جزوی طور پر متاثر ہوا، جبکہ بجلی کا پل گرنے سے علاقے میں بجلی کی سربراہی منقطع ہو گئی۔ دکان کے اگلے حصے کو بھی نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے بس میں سوار تمام 25 مسافر محفوظ رہے۔ مقامی افراد نے راحت کی سانس لی کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ضلع کاماریڈی میں کولر سے کرنٹ لگنے کے سبب ماں بیٹی ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعہ ضلع کے پٹاگلا تانڈا میں پیش آیا۔ مہلوکین کی شناخت شانکا بائی اور ان کی بیٹی شری وانی کے طور پر کی گئی ہے۔ ان کے ارکان خاندان کے مطابق رات میں کولر چلا کر سوئی ہوئی شری وانی کو پیر کولر سے چھو گیا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اس کی ماں جو اس کے ساتھ سو رہی تھی وہ بھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ ایک ہی خاندان کی دو خواتین کی موت پر پورے خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ضلع نرمل میں پیش آئے سڑک حادثے میں باپ اور بیٹی ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے نیلائی پیٹ گاؤں کے قریب اتوار کی صبح اس وقت پیش آیا جب ان کی کار کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار وین سے ٹکرا گئی۔ مہلوکین کی شناخت عادل آباد ٹاؤن کے رویندر نگر سے تعلق رکھنے والے 45 سالہ اشوک اور ان کی بیٹی 20 سالہ کارتکیہ کے طور پہ کی گئی ہے۔ اس حادثے میں ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں باپ اور بیٹی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ دونوں حیدرآباد سے عادل آباد کی سمت جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے کے بعد وین کا ڈرائیور فرار ہو گیا۔ میڈیپلی پولیس نے رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ میں چنکی چلہ کے ایک اسپا سینٹر پر چھاپہ مارا۔ پولیس نے 7 خواتین کو بچا لیا جن کو زبردستی طور پر جسم فروشی کے دلدل میں پھانسا گیا تھا۔ ایک اطلاع پر میڈیپلی پولیس نے AHD یونٹ کے ساتھ مل کر اس اسپا سینٹر پر چھاپہ مارا اور امبرپیٹ کی رہنے والی آرگنائزر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق یہ خاتون مساج پارلر کے نام پر جسم فروشی کا اڈہ چلایا کرتی تھی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے مدرس ڈے کے موقع پر اپنی والدہ کو خراج پیش کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا، ماں نہ صرف پہلی استاد ہے بلکہ ہر گھر کی دھڑکن بھی ہے۔ خاندان میں ماں ایک مضبوط بنیاد کی مانند ہے جو بچوں کو اقدار سکھاتی ہے اور اپنی محبت و قربانی سے خاندان کی تشکیل کرتی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر تمام ماؤں کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی خدمات کی ستائش کی۔ وزیر اعلیٰ نائیڈو نے اپنی والدہ کو پہلا استاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی لیکن انہوں نے مجھے نظم و ضبط کے ساتھ پرورش دی۔ انہوں نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ہم خواتین کے حقوق کے تحفظ اور ان کی ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے خواتین کے لیے مختص بجٹ دیپم 2 اسکیم کے تحت مفت گیس سلنڈرز کی فراہمی اور دیگر فلاحی منصوبوں کا ذکر کیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرشنا میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک اور دیگر 6 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے ویراولی کے قریب قومی شاہراہ نمبر 16 پر اس وقت پیش آیا جب ایک کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ کار میں سوار افراد وجے وارا کی کنکا درگا مندر جا رہے تھے۔ زخمیوں میں 3 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال لے جانے کے دوران وقت 2 کی موت ہو گئی۔ مہلوکین میں ہنومان جنکشن سے تعلق رکھنے والے دھیرج شامل ہیں جن کی شادی 1 ہفتہ قبل ہوئی تھی۔ ان کے ہم زلف نوین بھی اس حادثے میں ہلاک ہو گئے جو جنگاریڈی گڈم میں بینک مینیجر کے طور پر کام کر رہے تھے۔
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और स्ट्रैटेजिक मनसूबाबंदी का मजहर है। सिंह ने इतवार को यहाँ बरहमूस इंटीग्रेशन एंड टेस्ट फैसिलिटी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर अपने वर्चुअल खिताब में इस ऑपरेशन को हिंदुस्तान के मजबूत इरादे और मसला अफवाद की सलाहियत और अज़म का मुज़ाहिरा करार दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ने इन बेगुनाह ख़ानदानों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाया जिन्होंने हिंदुस्तानी सरजमीन पर भारत मुखालिफ और दहशतगर्द तंजीमों के हाथों अपने प्यारों को खो दिया था। वज़ीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं थी बल्कि ये हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और स्ट्रैटेजिक मनसूबाबंदी की अलामत थी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इस बात का सबूत करार दिया कि जब भी भारत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो सरहद पार की ज़मीन भी दहशतगर्दों और इनके अकाओं के लिए महफूज नहीं रहती है। उन्होंने कहा आरी वाक़े के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद, फ़िज़ाई हमले और अब पहलगाम हमले के बाद मुतादिद हमलों के ज़रिए दुनिया ने देखा है कि अगर इसकी सरज़मीन पर कोई दहशतगर्द हमला होता है तो हिंदुस्तान क्या कर सकता है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो की पॉलिसी पर अमल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया है कि ये नया हिंदुस्तान सरहद के दोनों तरफ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करेगा। सिंह ने कहा कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए शुरू किया गया था और मासूम शहरियों को निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में शहरी इलाकों को निशाना बनाया और मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारी मसला अफवाज ने बहादुरी और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के मुतादिद फ़ौजी अड्डों पर हमले करके मुँह तोड़ जवाब दिया। हमने न सिर्फ सरहद से मुअल्लक़ा फ़ौजी अड्डों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बल्कि हमारी मसला अफवाज का जहां पाकिस्तानी फौजी हेडक्वार्टर वाक़ है। आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे। उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद की सूरत हाल पर गौर व खौस करने के लिए फौरी तौर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। इतवार को वजीर आजम को लिखे एक खत में मिस्टर खड़गे ने कहा कि वो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले, ऑपरेशन सिंदूर और जंग बंदी के ऐलानात पर बहस के लिए पार्लियामेंट का फौरी खुसूसी इजलास बुलाने की अपोजिशन के मुतफ़क्का दरख्वास्त को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इस बात पर भी बहस करेगी कि पहले वाशिंगटन DC और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें जंगबंदी का ऐलान करती हैं। उन्होंने खत में ये भी कहा कि इससे कबल 28 अप्रैल को लोकसभा में कायद हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने भी पहलगाम हमले पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। मिस्टर गांधी ने अपने खत में वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऐलान से कबल जंग बंदी मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट करने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म इस दरख्वास्त पर गौर करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि मिस्टर गांधी ने हालिया ऑल पार्टी मीटिंग में भी पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की बात कही थी।
चंडीगढ़ कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने इतवार को कहा कि अमेरिकी हुकूमत में किसी को सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताना चाहिए कि कश्मीर एक 1000 साल पुराना मामला नहीं है। अमेरिकी सदर ने इतवार को एक्स पोस्ट किया था, जिसमें दिगर चीज़ों के साथ साथ उन्होंने कहा था कि वो दोनों ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या 1000 साल पुराने कश्मीर मामले का कोई हल निकाला जा सकता है या नहीं। मिस्टर तिवारी ने मिस्टर ट्रंप की इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि अमेरिकी हुकूमत में कोई शख्स सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताए कि कश्मीर कोई 1000 साल पुराना मामला नहीं है। उन्होंने लिखा कि कश्मीर का मसला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। 78 साल पहले जब पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर पर हमला किया और महाराजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को पूरे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करने का ऐलान किया, जिसमें वो हिस्सा भी शामिल है जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस बात को समझना इतना मुश्किल है। पाकिस्तान की फायरिंग में एक और भारतीय जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के RS पुरा सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग के दौरान फ़र्ज़ की अदायगी करते हुए सार्जेंट सुरू मोगा शहीद हो गए। शहीद का जासिद खाकी इनके आबाई गांव और ज़िला झुंझुनू राजस्थान मुंतकिल किया गया, जहां पूरे इलाके में गम और फ़क्र का माहौल है। इस मौके पर शहीद की बेटी ने जज्बाती अंदाज में कहा, मुझे फ़क्र है कि मेरे वालिद मुल्क की खिदमत करते हुए शहीद हुए। पाकिस्तान के नामो निशान को मिटाना चाहिए। मेरे वालिद की शहादत के ज़िम्मेदार किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको ख़त्म कर दूंगी। शहीद की बेटी का ये अल्फाज कौम पर कुर्बान होने वाले एक सिपाही के ख़ानदान के दुख, हौसले और वतन परस्ती को बयान करते हैं। पंजाब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और अमृतसर देही पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में ड्रोन के जरिए सरहद पार से स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस डायरेक्टर जनरल गुरु यादव ने इतवार को कहा कि हफ्ते के रोज़ गांव चक बाला पुलिस स्टेशन के तहत करीब मुकामी लोगों की इतला पर फौरी कार्रवाई करते हुए हमारी टीमों ने खेतों से असलाह और धमाका खैज मवाद की एक खप बरामद की। ज़ब्तशुदा मवाद में 2 30 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 30 जिंदा कारतूस, 2 सिटी बम, रिमोट कंट्रोल डिवाइस और चार्जर, कमांड मैकेनिज्म, 8 बैटरियां, ब्लैक बॉक्स और 972 ग्राम RDX शामिल है। उन्होंने कहा कि धमाका खैज मवाद एक्ट, इसलाह एक्ट और एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। DGP ने कहा कि पंजाब पुलिस अपने शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़, सरहद पार से लाक खतरात को बेअसर करने और क़ानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि हम अपने सिक्योरिटी और कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करते रहेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि पंजाब किसी भी दुश्मनी के अज़ाइम के ख़िलाफ़ महफूज और लचकदार रहे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PTP की सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं बल्कि बातचीत के ज़रिए ही मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि हालिया सरहदी शिलिंग में मुतासरा अफराद को फौरी माली इमदाद फराहम की जाए ताकि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी संवार सकें। महबूबा मुफ्ती ने इतवार को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC का दौरा किया, जहाँ उन्होंने उड़ी में पाकिस्तानी के दौरान ज़ख्मी होने वाले शहरियों की इयादत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, सीज़ फायर एक वक्त तलब अमल होता है। जब फ़ौज जंग लड़ती है तो पुरअमन माहौल बनाने में कुछ वक्त लगता है। हमें सब्र का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जंग सिर्फ इंसानी जानों का सियाह और तबाही लाती है, इसलिए दोनों ममालिक को मुस्तकिल बुनियादों पर अमन के क़याम के लिए संजीदा सियासी इक़दाम करने चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो मुतासरीन को फ़ौरी माली इमदाद फराहम करे ताकि वो फिर से अपने मकानात तामीर कर सके।
पाकिस्तान की फायरिंग में एक और भारतीय फौजी शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के RS पुरा सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई बलाश्तियाल फायरिंग में राइफल में सुनील कुमार शहीद हो गए। शहीद सुनील कुमार का जस्त की इनके साथी फौजियों की जानिब से जम्मू के ड्रेवा गांव में वाक़ इनके आबाई घर लाया गया, जहां गम की फिजा छा गई। सरहद पर मुसलसल सीज फायर के खिलाफ वर्जियों के बाइस भारतीय फौजी जान के खतरे से दो चार हो रहे हैं। फौज की जानिब से शहीद सिपाही को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और इनकी कुर्बानी को कौम ने सलाम पेश किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन की कशीदगी के बाद जंगबंदी पर राजी होने पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा है कि अमन कायम होने के बाद अब वो दोनों ममालिक के साथ तिजारत और मसला कश्मीर के हल के लिए काम करेंगे। मिस्टर ट्रंप ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़िल क़यादत पर फ़ख्र है, क्योंकि इनके पास ये जानने और समझने की ताकत, दानिशमंदी और सब्र की मौजूदा हारियत को रोकने का वक्त आ गया है जो इतने सारे लोगों की मौत और तबाही का सबब बन सकता है। लाखों अच्छे और बेगुनाह लोग मारे जा सकते हैं। आपकी विरासत आपके बहादुराना इक़दामात से काफ़ी बढ़ गई है। मुझे फ़ख्र है कि अमेरिका आपको तारीख़ और बहादुरी के फ़ैसले पर पहुँचने में मदद करने के काबिल रहा। मैं इन दोनों अज़ीम मुल्कों के साथ तिजारत में खातिर ख्वाह आप दोनों के साथ मिलकर कोशिश करूँगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के हवाले से कोई हल निकाला जा सकता है। खुदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादत को अच्छी तरह से किए गए काम की तौफीक दे। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन के साथ बराह रास्त बातचीत की अपील की है। मिस्टर पुतिन ने इतवार को कहा, हम तनाज़ा की बुनियाद पर वजूहात को हल करने और एक देरपा मजबूत अमन की तरफ बढ़ने के लिए संजीदा मज़ाकिरात चाहते हैं। यह बयान बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर और फ्रांसी सदर मैक्रोन समेत यूरोपीय लीडरों के यूक्रेन के दौरे और रूस से 30 दिन की गैर मशरूत जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ होने की अपील के चंद घंटे बाद आया है। लेकिन खबरदार किया, हम पर दबाव डालने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। मिस्टर पुतिन ने कहा कि वो इस इम्कान को इनकार नहीं करेंगे कि रूस और यूक्रेन मज़ाकिरात के नतीजे में एक नई जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रहनुमाओं ने कहा कि वो इतवार को तक सदर जब उर्दूगान से बात करके तफसीलात पर तबादला ख्याल करेंगे। यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन का दौरा किया और 1 माह की जंग बंदी की अपील की। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के रहनुमा नाम नेहाद रजामंदों के इत्तेहाद का हिस्सा थे। यूक्रेन के सदर की मेज़बानी में इन ममालिक के रहनुमाओं ने दौरे के दौरान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मिस्टर पुतिन ने 30 दिन की गैर मशरूत जंग बंदी पर इत्तफाक नहीं किया तो रूस के तवानाई, बैंकिंग के शोबों पर नई और बड़े पैमाने पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। आखिरी में सुर्खियां फिर एक बार। सरहदी रियासतों से तेलंगाना के तालिबे और शहरियों की बड़ी तादाद दिल्ली में तेलंगाना भवन से रुजू। तेलंगाना के 86 अफराद पहुंचे तेलंगाना भवन। मजीद 100 से ज्यादा अफराद की आमद के पेश नजर हुक्काम के जरूरी इंतजाम।
तेलंगाना में एब्सेंट के नतीजे का ऐलान, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में अपनी रिहायशगाह पर किया नतीजे जारी। तेलंगाना हुकूमत बीसी मुर्दमशुमारी पर शुबहात को दूर करने तैयार, कांग्रेस ने हमेशा बीसी तबकात के रिजर्वेशन की हिमायत की। बीजेपी के रहनुमाओं को तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है, वजीर बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर का बयान। कारगुजार सदर KTR ने सऊदी अरब में सड़क हादसे में जख्मी महज के अरकान खानदान से की मुलाकात। सऊदी अरब में ज़ेरे इलाज महज से वीडियो कॉल के जरिए की बात, हर तरह की मदद करने का दिया तयक़ुन। मदर्स डे के मौके पर रुकने कानून साज कौंसिल के कविता का जज्बाती पोस्ट, अपनी वालदा और खुश दामन के साथ यादगार तस्वीर किया शेयर। हुकूमत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर पर कब्जा किए बगैर लड़ाई बंदी क्यों की, CBI के लीडर नारायणा का बयान। आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिश का इम्कान। मेदक जिले में दर्जे हरारत 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और स्ट्रैटेजिक मनसूबाबंदी का मुज़ाहिर। बरहमोस इंटीग्रेशन एंड टेस्ट फैसिलिटी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का वर्चुअल खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.